Okay. So recording started, and now during last lockdown, they wanted to do something good for the society. We had a lot of discussion and the family friend, and and of course being a teacher, they felt that we should do something for teachers, and that's how SRW Foundation was formed. The two major agenda of SRW Foundation is teachers empowerment and teachers welfare. That's the only thing that we do at SRW Foundation. And as a part of that, we have built a app called Teacher Talk app, where we are building a community of teachers. My sincere request and invitation to all the teachers who have not joined Teacher Talk app, please join. We will be putting a link here so you can download the app and be a part of the group. It's a larger community of teachers, and we are trying to build more and more teachers. We strongly believe that when all teachers come together, if we form a community, it can become a strength by itself, and lot to be achieved together. Individually, I or you cannot do much, but if we come together, we'll be able to achieve a lot. And with that intention, we have built this platform. My humble request to all of you, please join Teacher Talk. Meanwhile, Shilpa ji has been associated with us since long. She has been an active member of our journey. She herself is a teacher, and she suggested that we should do a crash course for the teachers, because there's a lot of confusion, a lot of nervousness amongst teachers for this MahaTET, and we like the idea. Why not? And hence today is the first day and the first session of this crash course, which is going to be conducted by Shilpa Gore in English. And of course at 7:30 we have Dr. Urmila Patil, who will be conducting the first session in Marathi. So there are two parallel sessions happening over next 6 days, starting today. And I'm sure all the teachers, please do take advantage, take benefit of this what we're offering. It's completely free. You don't have to pay anything. Okay, it's a foundation which is taking care of the cost and everything. And please inform other teachers also in your circle, so that the benefit reaches to more and more teachers. Okay, that's my request. So whether in Marathi or English, whatever you prefer, you can join it. By the way, this is also being conducted live on Facebook, because we have got around 1,500 registrations so far. So in Marathi and English, roughly almost about 700, 750 numbers in each. So we expected the Zoom limit is 500. So we expected that some teachers may go to Facebook. So teachers, if you don't want to join on a Zoom, you can also be a part of, go through the same course on Facebook Live. Okay. So I think the link was given to you on the group, and I'm sure Abhishek from our team would have sent the link. So it's 5:35. All the best to all of you teachers, and over to you, Shilpa ma'am. Please take over. And okay, one more thing last. I'm sure you'll have queries after this. So for queries, please do not put on a WhatsApp, because a lot of teachers, they get harassed. They don't like. So please put all the queries on Teacher Talk app in discussion forum, so that Shilpa ma'am and Urmila ma'am can reply to your queries. And not only that, even other teachers can also see the replies, and they all benefit. Okay. So rather than putting it on a WhatsApp, please do not use WhatsApp, because we all know everybody is reach fatigue. Everybody's got now sick of WhatsApp. So my sincere, humble request, please put all the queries on discussion forum in Teacher Talk app. With that, I now request Shilpa ji to start her session. Thank you so much. All the best to all the teachers. Thank you, sir. So I will start from the beginning. The topics we have to cover in English. Myself, Shilpa Gore. I have a great opportunity on behalf of Darvis Foundation and Nayan sir, that we have a crash course for the teachers, free available. And things are, after 2 years, we are having MahaTET. So now onwards, it will happen twice a year. साल में 2 बार होने वाली है, जिसका अगर गलती से रह गया है फॉर्म भरना, फिर भी वो अगले टीईटी में
दे सकता है। उसके बाद टीईटी टाइट आएगी, देन टीईटी आएगी, सो इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। जिसके मार्क्स कम, 90 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आपके कम आते हैं तो अपग्रेड आप कर सकते हैं नेक्स्ट टीईटी में। और आई विल गिव बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू who will join from today. Thank you, sir. I will start, sir. Yeah, just one last thing which I missed perhaps. Teachers who have not registered, they can still register for tomorrow, day after tomorrow. So each day we have a new topic. Okay. So not necessarily कि अगर register नहीं किए तो अभी join नहीं कर सकते. They can still join even tomorrow also. So I think the whole schedule has been given, and every day there will be new topic. So please ask other teachers to join and be part of the, they can still go through the course for the next topic also. Thank you so much. Okay, sir. So here we are for our English language 1 or language 2. It doesn't matter because there is just level up for 6 to 8. So but basic grammar remains the same whether you appear for paper 1 or paper 2. Same is for the other exams also. So let's start. So we will start with the topic wise. I have selected discuss. I'm not discussing question answers. I'm not discussing options to you, but I am discussing the whole English syllable to cover in 1.5 hour. 1.5 घंटे में मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, और टॉपिक्स के कुछ शॉर्टकट्स, जो टिप्स जो हम याद रखेंगे, शायद आज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है. So let's start with the parts of the speech. What are the part of the speech? So I will share the screen. Thank you. So we will just quickly move around. सब लोग ये हर चीज हर जन जानते हैं, सिर्फ what we are doing in for English language कि हम लोग टेक्निकल नॉलेज आज हम ले रहे हैं. So what are the part of speech? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. So article is given there, but we will discuss as a different topic here. So there are 8 parts of speech. So let me discuss about noun, pronoun, verb, adjective and adverb. What is the difference? पहले हम 5 डिस्कस करेंगे, बाद में बाकी के 3 डिस्कस करेंगे. तो अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ. नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पर्सन का. जैसे मैं शिल्पा हूँ, सीमा है, यस नयन है. Then things will be coming out. तो person, place हो गया खुपली, पूना, बॉम्बे, अमेरिका, कोई भी. पर्सन, प्लेस, एनिमल. एनिमल कोई भी हो सकता है, कैट, डॉग. एंड थिंग कैन बी कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, बुक, एनीथिंग. सो दैट इज द noun thing. So next I want you to understand here only कि noun को जब भी हम describe करते हैं तो हम 3 चीजें उसके बारे में देखते हैं. First is whether it is subject, whether it is object. Next thing we find that वो singular है या plural है, तो हम उसकी case देखते हैं. Then third thing is जेंडर देखते हैं. सो व्हाट वी फाइंड अबाउट नाउन. मैं क्योंकि ये शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं अभी यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच ही सिर्फ डिस्कस नहीं कर रही हूँ. मैं उन सारी चीजों को जहां जहां मुझे याद आएगी कि जो ये हमारे काम आने वाली है एग्जाम में, मैं वो चीजें वहां बताने वाली हूँ. तो जब भी हम नाउन देखते हैं तो नाउन हमारे एक सेंटेंस में 2-3 जगह भी आ सकता है, लेकिन उसको हमें फाइंड आउट करना है वो सब्जेक्ट बन के काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बन के काम कर रहा है,
सेकेंड थिंग हम देखेंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। थर्ड थिंग हम देखते हैं उसका जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है, बिकॉज इट डिपेंड्स। हम जब प्रोनाउन हम जब वहां पे लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें जेंडर जब हम अगर हम डिफाइन कर लेंगे तो हमें प्रोनाउन लिखने में ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट वी आर कमिंग अप टू प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज नथिंग बट द नाउन itself, subject itself, object itself, but प्रोनाउन नाउन की जगह पे हम कुछ प्रोनाउंस है जो मैं अभी इसके बाद दिखाने वाली हूँ, वो टेबल वो यूज करते हैं। जैसे मेल हो गया तो हम ही यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं। प्रोनाउन के भी डिफरेंट टाइप्स है, तो हमें है ना एग्जाम के लिए इतना डिटेल टेक्निकल हर चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप वो सेंटेंस में उसका जगह क्या है, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास कम है, तो हर चीज हम एग्जाम तक अभी डीप में नहीं देखने वाले हैं, आपके पढ़ाई के दौरान भी। तो प्रोनाउन आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जेंडर जब चेंज होगा तो हम क्या लिखने वाले हैं। गर्ल होगा तो क्या जेंडर होगा, बॉय होगा तो क्या जेंडर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो क्या होगा, जैसे दे लगता है, देम लगता है, देयर लगता है, THEIR देयर लगता है, तो वो हमें ध्यान में रखनी है, जो मैं अभी चार्ट दिखाने वाली हूँ इसके बाद। नेक्स्ट इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब एक्शन वर्ड, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, यू ईट एन एप्पल। तो हम जब कोई भी पूरे सेंटेंस में जो वर्ड हमें हिलता हुआ एक्शन करता हुआ दिखाई देता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे ईट, सो इफ आई कैन ओके आई कैन, माय वीडियो इज नॉट टर्न, तो मैं एक्शन कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे ईट जैसे ही सुना दिया, मैं खाने की एक्शन मुझे याद आता है। मैं स्लीप बोलती हूँ तो मुझे सोने का एक्शन मूव करता है, वो वर्ड हमें हिलता हुआ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। प्ले, किक, so jump, start, so that is called verb। वर्ब की बहुत ही सुंदर परिभाषा यह है कि एक्शन वर्ड, वो शब्द आपको हिलता हुआ कुछ ना कुछ, एप्पल बोलेंगे तो वो हिलता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन हम बोलेंगे ईट तो वो हिलता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज आवर बॉडी में एक्शन किया वहां पे। तो वर्ब इज नथिंग बट द एक्शन वर्ड इन दैट सेंटेंस। अब आते हैं हम एडजेक्टिव और एडवर्ब में हमें फर्क करना आना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्लॉज फाइंड मदद करेगा, फ्रेज फाइंड में मदद करेगा। तो हम पहले व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब हम सीख लेते हैं। इफ यू आर राइटिंग, प्लीज राइट नाउन। नाउन लिखा आपने, उसके बाद लिखिए द वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन, दैट इज एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जो भी उसको डिफाइन करता है, वो कैसा है, उसका रंग क्या है, उसका शेप क्या है, दैट इज एडजेक्टिव। और जो चीज, जो वर्ड को डिफाइन करता है उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, बहुत ही स्मॉल। कभी कभी हमें एडजेक्टिव एडवर्ब भी दिखाई देता है और एडवर्ब एडजेक्टिव भी दिखाई देता है। तो आप प्लीज हर बार जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं या क्लॉज पढ़ रहे हैं या फ्रेज पढ़ रहे हैं, तो हमें सेंटेंस बार बार पढ़ना है कि वो जो वर्ड है, वो जो फ्रेज है, वो एडजेक्टिव एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है कि एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब है कि वो नाउन को डिफाइन करना है, आपको पूछना है नाउन को व्हाट। जैसे नाम हो गया शिल्पा, तो वो या तो ब्यूटीफुल होगी या द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट टू योर डोर। तो द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट टू योर डोर मतलब शिल्पा के, द गर्ल के बारे में डिफाइन किया, तो मतलब वो पूरा फ्रेज या क्लॉज वो हो जाता है एडजेक्टिव। क्लॉज बोलेंगे या एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। अगर हम उसको बता रहा है, समय बता रहा है, वो कैसे हुआ एक्शन, स्लो हुआ, फास्ट हुआ, आगे हुआ, पीछे हुआ, तो दैट इज एडवर्ब। वो एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा या एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा, या सिर्फ वहां पे अगर आपको एडवर्ब पूछा है तो यू कैन डिफाइन इट, दिस इज एडवर्ब। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझ जाए कि नाउन को जो डिफाइन करता है वो है एडजेक्टिव और जो वर्ब को डिफाइन करता है वो है एडवर्ब। तो हमारे 5 चीजें हमने अभी रिकॉल किए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। Yes. So next are the 3 remaining part is preposition, conjunction and interjection. So preposition, what is preposition?
that is either it is before noun or pronoun to show relation. हर बाकी के सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो हम बोलते हैं उसका रिलेशन डिफाइन करता है कि सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो ऊपर हो रहा है, अबव, ओवर, अप, बिहाइंड, ये सब प्रेपोजिशंस है. नेक्स्ट इज कंजक्शन. जब दो सेंटेंस या दो वर्ड को ज्वाइनिंग होता है, उस वो जो वर्ड ज्वाइन करता है उनको बोलते हैं कंजक्शन. दैट केम एज एग्जांपल, आप लिख लीजिए एंड, और, सो, आफ्टर, सिंस, आइदर और, नाइदर नॉर. बहुत सारे कंजक्शंस है जो हमें शायद पता है, लेकिन उस वक्त हमें याद रहना चाहिए जब हम सेंटेंस में वो पढ़ रहे हैं टीटी के एग्जाम में. तो कंजक्शन जो ज्वाइन करता है, जंक्शन मीन्स क्या होता है, ज्वाइन करता है. तो रिमेन दैट ट्रिगर वर्ड जंक्शन, conjunction with join, not only but also that is also conjunction. लास्ट इज इंटरजेक्शन. जब भी हमें को बहुत सारी खुशी होती है या बहुत दुख होता है, the word which defines our happiness or sadness, like oh, ouch, hooray, alas. तो डिफाइन है इमीडिएट. बच्चों को हम बताते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है उस वर्ड के आगे, और वो वर्ड हमें डिफाइन करता है ज्यादा खुशी या ज्यादा सैडनेस. तो दैट इज इंटरजेक्शन. पार्ट ऑफ स्पीच बहुत जरूरी होता है बच्चों को सिखाना एज अ टीचर, एंड वी आवर सेल्फ टू डिफाइन आवर सेल्फ. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. दिस आई विल क्लोज दिस. I want you to take a screenshot if you are taking. Types of nouns: common noun, proper noun, collective noun, compound noun, concrete noun, abstract noun. Countable and uncountable means which can be counted, and uncountable is that can be counted. मतलब कि जैसे दूध हो गया या rice, so that are counted in kilos or kilometer. जो हम एक शेप दे देते हैं या एक खुद का आइडेंटिटी स्टैंडर्ड यूनिट रखते कि इतना ये बर्तन में या लिक्विड हो या सॉलिड हो, इतना वजन का ये चीज है. सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. नाउ नेक्स्ट मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताना है आपको. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट लाइक ऑनेस्टी, देन वी कैन से ट्रूथ, जो हमें फीलिंग्स दिखाई नहीं देते, लेकिन एज ए नाउन हम उसको डिफाइन करते हैं सेंटेंस में. तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों को पता होना चाहिए. कॉमन नाउन हमें पता है, अगर हम कैट बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है. इफ आई से पुसी कैट, देन पुसी कम्स द प्रॉपर नाउन. So if I say girl, that is common noun, but if I say Seema, that is proper noun. तो collective nouns के भी बहुत सारे हैं, ज्यादा नहीं जाना है. प्राइमरी पेपर 1 वाले जो बुक में है वही पढ़े, एंड सेकेंडरी के में 6 to 8 के इसमें जितने आए, नहीं तो हम लोगों को गूगल पे थाउजेंड कलेक्टिव नाउन्स मिलेंगे, तो उतने याद हमें करने नहीं है. टीईटी के बुक्स के बाहर, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी आता नहीं है. यू हैव टू रेफर योर टेक्स्ट बुक प्लीज. थैंक यू. अब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको एक चार्ट दिखाती हूँ कि इतना भी मिनिमम आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया तब भी आपके लिए बहुत है. See, here are the list of abstract nouns. So these are enough to learn. जैसे beauty, belief, bravery, childhood, determination. So that can't be seen. That is we feel about it. हमें अंदर पता होता है कि हम चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में बात करें, ओल्ड एज के बारे में बात करें. व्हाट एन आइडिया. तो आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये पहचान में आना चाहिए. Noun, person, place, animal, thing हमें दिखता है. We can see it, we can watch it, sometimes we can smell it, we can taste it, but abstract noun we have to feel it. Okay, so I'm closing this chapter now. Thank you everyone.
So please go through kinds of adjective, kinds of preposition, kinds of adverbs. They are easily available. We will not waste your time because we have many more, important things to learn. Next are the determiners. Determiners. If you can write DETERMINERS. So what are the types? There are articles, a and the. A and the. We know when vowel comes, we use an. When consonant comes, we use a. And for universal unique things, we use the. There are demonstrative adjectives like these, that, these, those. So these and these are used for the objects which are very near. And that and those are for the objects which are very far away. So like, this is my pencil which is very near, that is fan. So fan is very away from us. If it is singular, no ma'am, I'm just discussing the topic because we have lot of topics and we have to go forward for the main topics we have to cover itself within a 1.5 hours. Now there are some indefinitive adjective like some, few, many, little. So these when as a subject it starts, we should identify that. Now there are numerals like 1, 2, 3 pencil, 4 pencil, first number or third in row. So they are the numerals. Now very important topic of the day is tenses. So I will go for tenses first and then I will go for the subject verb agreement. So here are the tenses. So I would like you to understand this. There are 3 types of tenses: present, past, and future. And every tense has 4, again division. Like present indefinite, that is simple. Simple present tense, present continuous, that is, we have a continuing thing like eating, playing. So with the means action has started but not ended. That becomes the continuous tense. Present perfect. Perfect is that कि वो काम शुरू किया था खत्म हो गया. So that is present perfect. Present perfect continuous. What is that mean? Present perfect continuous means हम अभी उसकी बात कर रहे हैं जब वो चालू था लेकिन वो काम अभी खत्म हो चुका है. लाइक जैसे कि कल मैं आपके घर 4 बजे आई थी तब ताला लगा था. तो जब मैं 4 बजे व्हेन आई हैव कम एट योर होम इट वाज लॉक्ड. तो इसका मतलब क्या है कि मैं वो उस टाइम चालू था लेकिन आज जब मैं आज से बात कर रही हूँ तो वो काम खत्म हो गया है. So it's about perfect continuous. So we will go move ahead. यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि बाकी के सारे स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस है. जो अनस्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. So we will talk about that. What happens in simple present tense? In simple present tense, the first verb we have to use the first verb. But there is a trick. For singular objects, we have a different thing, and for plural objects, we have different things. So we have to understand this thing. Like I go. So what is here? I is a singular or plural? Tell me. Singular or plural? I is singular or plural? I want to discuss with you. In chat box, you can give your answers. I is singular or plural? Yes, I is singular and plural. I is singular, yes. So I want you to understand here
just a minute, give me, I will stop this and I will start a word. Give me a minute, I want to discuss this here. So I want you to understand this कि हमारे पूरे दुनिया जहां में कोई भी सेंटेंस सिर्फ 8 प्रकार से बनता है. So what is it? It is NAME, name. Next is either he is a male or a female, so we have he here, then we have she here. Then for objects, the sentence starts with it here. Then comes our I here. Then comes our you here. Then comes our we and they. So these are the 8 main topics from which any sentences start. तो name हो सकता है वो किसी भी चीज का हो सकता है, name, animal, person, thing. Then he is for when we use pronoun, but it is a subject as a male. She is for female. It is for thing, I, you, we, they. So I want you to understand for simple present tense कि हम जब लगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला, there are kinds of sentence ना, kinds of sentence. मैं ये ग्रामेटिकली आपको समझाना चाहती हूँ कि कहाँ हम या हमारे बच्चे अटकते हैं. So first 4 kind of sentence: positive, negative, then क्वेश्चन में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4 प्रकार के वाक्य हम टेंसेस में हमें प्रैक्टिस करने चाहिए. तो फर्स्ट वन इज लाइक, अगर मैं कंटिन्यूस कर लूं तो मैं लिखूंगी शी इज ईटिंग एन एप्पल. नेक्स्ट, अगर मुझे नेगेटिव लगाना है इसमें तो आई एम टेक्निकली चेंजिंग इट नेगेटिव, बट मीनिंग चेंज हुआ तब भी चलेगा इसमें, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं. शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल. अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम सेम सेंटेंस को जस्ट व्हाट वी विल डू इज हम पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब and it becomes a positive question. And negative is isn't she eating an apple. तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि जब टेंसेस में वो फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब आईएनजी, पॉजिटिव में हम इज ईटिंग बोलते हैं, नेगेटिव में हम इज नॉट ईटिंग बोलते हैं, क्वेश्चन में इज शी बोलते हैं, इज शी ईटिंग, इजंट शी ईटिंग. तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है नॉट लगाने के टाइम में या और क्वेश्चन बनाने के टाइम में. ये चीज हमें क्वेश्चन टैग, जो क्वेश्चन आएगा आपको ऐड क्वेश्चन टैग, उसमें आपको मदद करने वाला है ये जो मैं फॉर्मेट बता रही हूँ आपको. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कितना जरूरी है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो वहां पे आता है सिर्फ सब्जेक्ट, देन कम्स आवर वर्ब and then comes our object. This is the formula of our simple present tense. So subject, first verb and object. So if I am doing the same sentence, I will write here
she goes. We will use same. She eats an apple. But when we use it for plural, like they eat an apple. So what happens here? What happens here is यहाँ पे s लगा हुआ है और यहाँ पे s नहीं लगा है, तो वो s जाता कहाँ है? यहाँ पे अगर मुझे she eats an apple बनाना है, उसका नेगेटिव बनाना है, तो how will we write? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं she eats an apple का नेगेटिव सेंटेंस. मीनिंग चेंज हुआ तब भी चलेगा. इफ मीनिंग is changing, it doesn't matter now. So can you write in chat box negative sentence of she eats an apple? Anyone? I'm waiting for an answer. Hello. So what will we have to add this here? What we have to do? We have to find an helping word. So what is helping verb here? We have to use do or did. Do or does. We have to use do or does. So what we will do? So for, see here. So for where does is used and where do is used, we have to understand it. Okay. For I will just write here. You have to understand me. So अगर name आता है singular में आता है does, और for plural we use do. Okay, we don't have really a time to extend, but if you can understand this, it's very, very important to understand simple present tense. बट एज आई भी सिंगुलर है, लेकिन उसको हम वो प्लूरल में भागता है सिंपल प्रेजेंट में. तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ ताकि वो आपको याद रहे. वी के साथ डू लगता है, देन कम, दे के साथ भी आप डू ही यूज करेंगे. तो इन शॉर्ट मुझे आपको ये बताना है कि आई के साथ हम प्रेजेंट में वो प्लूरल के साथ चला जाता है, लेकिन जब वो पास्ट आता है, सिंपल पास्ट आता है या पास्ट कंटिन्यूअस आता है, तो वो एक अपनी आइडेंटिटी बना देता है. जैसे कि आई एम होता है, यहाँ पे वो प्लूरल के साथ गया है क्योंकि what it is सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब प्रेजेंट टेंस में मैं हूँ तो मेरा अहंकार बहुत बड़ा होता है, तो मैं अपने को दुनिया का राजा या रानी समझता हूँ. तो दैट्स व्हाई इट गोज टू प्लूरल. हम बात करते हैं ना, तो दैट इज हैपनिंग इन इंग्लिश ऑल्सो. आई सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल में भाग जाता है, बाकी पास्ट में वो सिंगुलर में होता है. जैसे आई वॉज, शी वॉज, डिश, इट वॉज. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी मैं मेन चार्ट पे आती हूँ कि जैसे ई एस कब हमें लगाना चाहिए और एस हमें कब लगाना चाहिए. So if you have understand, I am just stopping this screen, but you have to, it's very important to understand this thing. Here we go. कि जब भी verb end होता है o डबल एस, वर्ब के बारे में बात कर रही हूँ कि वर्ब का लास्ट लेटर ओ हो, जैसे गो है, डबल एस, एस एच पुश में हो जाता है, सी एच कैच में हो जाता है, एक्स हो, जेड हो, तब हम ई एस लगाते हैं. और जब वो कंसोनेंट हो तो हम वहां पे सिर्फ एस लगाते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज नेगेटिव करते टाइम हम वहां पे जब नेगेटिव हो या क्वेश्चन टैग हो, डू और डज हमने लगा लिए है, तो फिर से वो गो ही फर्स्ट वर्ब भी रहता है.
वैसे मतलब कि she does not, again it will not come eat, it will come as eat only, first verb only. You have to understand this कि जब हम do does लगाते हैं तो वहां से s या es है वो हट जाता है. This is very important to understand. Simple present tense का आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. First to not only for 12th, it's for higher English के जब हमारे बाहर के देशों के भी एग्जाम्स होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट ही ज्यादातर पूछे जाते हैं बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जल्दी समझ में नहीं आता है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिंपल. अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि शी गोज बोला है, शी सिंगुलर है और ईएस लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो उससे मीनिंग इसका मतलब वो प्लूरल वाला नहीं है. नाउन, प्लूरल एंड सिंगुलर इज ओनली फॉर नाउन. वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से वो प्लूरल नहीं हो जाता है. so you have to understand this. It doesn't change a meeting, when es और es is joined, वहां पे उसका मतलब प्लूरल या बहुवचन नहीं होता है. Next, I want you to show the sentences itself. If you can understand this, like O, double S, SH, CS, X, we add EF. Otherwise, we add only S to the word. Now, here again, there is a rule for consonant. If a consonant is followed by Y, it changes into I. So, study, studies. If a vowel is followed by Y, just Y, we have to add only S, like play and plays. So these are the very, very simple rules we have to understand. ये मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर रही थी कि कैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगा के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव की बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब वहां पे बहुत जरूरी होता है. एंड इवन इन फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो दिस इज द क्वेश्चन टैग हमें जब लगाना है तो आप यहीं पे आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है. जब हम पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं पीछे जाते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है. I will just stop this screen. यहीं पे हम क्वेश्चन टैग लगा लेते हैं. जैसे she is eating an apple, तो what will question tag come here? Please, if you can chat box में हम इसका क्वेश्चन टैग हमें लगाना है. she is in eating an apple, तो हमें क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? Yes, we have to write. If a sentence is positive, तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव हो जाता है और उसके साथ हमें प्रोनाउन लिखना होता है. अगर यहाँ पे नाम लिखा है तो हमें चेक करना पड़ता है वो लड़की है या लड़का है, मतलब मेल है या फीमेल है. इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो सीमा इज ईटिंग एन एप्पल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इजंट, और वहां पे सीमा नहीं लिखना है, हमें वहां पे प्रोनाउन लगाना है. राइट, एंड क्वेश्चन टैग. दिस इज द क्वेश्चन टैग एंड यू गेट योर 1 mark here. Thank you everyone for this topic. I will share next topic to you. टेंसेस के जो फॉर्मूलेज है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. कल हम डिस्कशन फॉर्म में वहां पे भी चार्ट डाल सकते हैं, हम डालेंगे. नाउ टेंसेस का जो मुझे सबसे मेन चीज था वो था अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस. I want you to discuss auxiliary verb also. I am sharing one chart with you all. Here is the chart. मॉडल ऑक्सिलरी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि टेंसेस है. जैसे कि है, अब हर चीज का हमें अर्थ समझना होता है क्योंकि वहां पे लिखा होता है एग्जाम में कि आपको एबिलिटी से बताइए आपका कौन सा मॉडल लगेगा. यहाँ पे अगर आपको नीड है तो क्या कौन सा मॉडल आप लगाएंगे. तो दे गिव यू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड देन यू हैव टू
find out, search for the correct word and you have to choose that option. तो can में क्या है? Can मतलब क्या है? Ability है या request है? Might क्या है? Possibility है? For future, ये अगेन वो फ्यूचर में पास्ट टेंस है, ये देखना है आपको सेंटेंस में. देन विल इज फ्यूचर टेंस, प्रिडिक्शन है, सर्टेनिटी है. ought to मतलब आपको करना चाहिए, यू नो, यू शुड डू इट. ऑब्लिगेशन है कि आपको करना चाहिए, यू नो, you ought to do it. would is a polite request, would you give me a pen. तो कंडीशन हो सकता है, वो सेंटेंस के ऊपर रहता है हमेशा. Next is may. May is the for permission we ask, for polite request, for the chance we ask, we use may option for the auxiliary verb. Shall is for future, or you should do, you shall you know, achieve it. तो mandatory advice होता है कि हो सकता है. Should is again a optional advice when we give somebody. मस्ट और नीड यहाँ पे नहीं लिखा है, तो नीड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मस्ट इज कि आपको एनी हाउ कंडीशन वो आपको करना ही चाहिए 100%. जहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको ये करना ही है, तो वी यूज मस्ट. नीड मतलब कि आपको गरज है, आपको यू नो जरूरत है, देन वी यूज दैट वर्ड नीड. नेक्स्ट इज could. Could is again for polite request or condition. So you have to go through this, you know, auxiliary verbs to understand what, when and where to we can use this. No, ought to and must are very different. ought to का मतलब होता है कि जैसे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो यू नो हम उसको रिक्वेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको ये करना चाहिए था, हम जब ऐसे बोलते हैं. मस्ट इज यू मस्ट अटेंड द क्लास. तो मस्ट मतलब वहां पे नहीं का ऑप्शन ही नहीं होता है. वंस व्हेन वी सेड मस्ट, यू हैव टू यू नो डू इट. एंड ऑटो इज लाइक वी कांट से रिक्वेस्ट, पर आपको ये करना चाहिए था, यू नो. मतलब वहां पे जैसे सोशलिज्म आ जाता है कि ये किया आपने, गलत किया, लेकिन ये आपको करना चाहिए था. लाइक रिस्पेक्ट के साथ तो ज्यादातर जुड़ा होता है ये. सो देयर आर मेनी ऑक्सिलरीज वी हैव टू अंडर. आप जब भी आप टीएटी में आप कोई भी सेंटेंस पढ़े, तो पहले तो आप उसको अर्थ समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू नो think of the options given, whether you have to choose it or not. Next are the phrasal verbs and items. You have to go through the you know phrase and clause हम बाद में करेंगे, लेकिन आइटम्स के बारे में कहावतें या मुहावरे हैं, वो हम गो थ्रू हो गए. उसमें चार्ट में से या बुक्स में से हमें जितने भी मिलते हैं टेक्स्ट बुक में, तो आपका ये आसानी से इजीली हो जाता है ये वाला क्वेश्चन. सो नेक्स्ट वन इज active and passive voice. Active and passive, yes, yes ma'am, just like you have to you know help your neighbors. So you must help your neighbors, वहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे ought to ही आना चाहिए, क्योंकि हमें वो करना चाहिए, सोशलिज्म आ जाता है उसमें. Like that. Now we will go to active passive because it is related to tenses only. I will share one chart with you all. आप समझिए इस बात को कि हमारे 4 पैसिव टेंसेस होते नहीं है. फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है, एंड देन नीचे के 3 जो टेंसेस है वो भी नहीं होते हैं. शायद इसमें गलती से लिखा है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है. तो वी डोंट हैव, आई विल जस्ट एनोटेट इट.
Okay. I can't find the annotation word. Okay, if you can find, if you can see here, future continuous will be verb ing. यहाँ पे पैसिव नहीं है, मेरे को एनोटेशन मिल नहीं रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द पैसिव वॉइस. फ्यूचर कंटिन्यूअस इज रॉन्ग, मीन्स पैसिव वॉइस नहीं होता है उसका. एंड लास्ट थ्री परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेस का नहीं होता है. एक बार हम यहाँ पे टेंसेस का जो टेंसेस हमने पढ़े वो एक्टिव वॉइस हो जाते हैं, और पैसिव वॉइस में चेंज कैसे आता है हम अभी करेंगे. तो इट इज लाइक वर्ब, वर्ब के साथ SES आ जाता है. सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म आता है. फ्यूचर सिंपल में विल शैल फर्स्ट वर्ब आता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर फर्स्ट वर्ब ING आता है. पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब ING आता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी के साथ फर्स्ट वर्ब ING आता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैज हैव एंड थर्ड वर्ब आता है. पास्ट परफेक्ट के साथ में हैड थर्ड वर्ब आता है. फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव थर्ड वर्ब आता है. एंड अगेन वेयर इट कम्स हियर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम रहता है. हेल्पिंग वर्ब सेम है, हैज हैव, हैज हैव. यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, BEEN बीन और फर्स्ट वर्ब ING, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो तीनों टेंसेस में फर्स्ट वर्ब ING, फर्स्ट वर्ब ING, फर्स्ट वर्ब ING. और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स लग जाते हैं. तो व्हाट हैपेंस इन पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में होता है वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, देन कम्स वर्ब, देन कम्स ऑब्जेक्ट. लेकिन पैसिव वॉइस में उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, देन कम्स अवर वर्ब, देन वी यूज BY बाय एंड सब्जेक्ट आता है. तो अगर वो नाम लिखा होगा तो नाम लिखते हैं, नहीं तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसकी जगह पे. So we have to go through some, practices, active and passive voice, then it becomes easy. नेक्स्ट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी. सी है. तो व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे. when two persons are talking to each other directly, it is direct speech. When here is a question, ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल्स उन्होंने बोले थे. तो मैं थोड़ी देर बाद जाते टाइम मैं ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ, आपको ऑक्सिलरी वर्ब के थोड़े से ये दे दूंगी. Next is what is the difference between direct and indirect, active and passive. So what is the difference between active and passive voice? I will just stop share here. I want you to understand the difference between active and passive voice. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट रेदर देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं आपको हिंदी का ही सेंटेंस बोलती हूँ कि यस मैम दीज आर बेसिक्स, बट जैसे जैसे आपको बेसिक आपका पक्का होना चाहिए. 6 to पेपर 2 में जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सेम थिंग पूछते हैं, सिर्फ उनका कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बढ़ जाता है.
but you have to find noun pronoun only, नाउन एंड प्रोनाउन. सो बेसिक तो वहां पे भी हमें चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस पेपर 1 का थोड़ा लेवल इजी वाला होगा, लेकिन पेपर 2 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल थोड़ा लेवल अप वाला होगा, कि ताकि आपको आपके बच्चे भी वो डिफाइन कर सके. So I want you to understand the difference between active and passive voice. So active and passive, like सिंपल सेंटेंस में आपको मैं बताती हूँ. जैसे सीमा इज ईटिंग एन एप्पल. तो हु इज इम्पोर्टेंट हियर? सीमा. किसने एप्पल खाया? किसने एप्पल खाया इज इम्पोर्टेंट. तो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट कि सीमा ने एप्पल खाया. बट अभी हमें है ना, किसने खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है. एप्पल यहाँ से कहाँ गायब हुआ? क्योंकि एप्पल वो मेरे काम का था, मुझे खाना था. So I would use passive voice. Who eats an apple? Then answer is apple is eaten by Seema. तो वहां पे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस मिलता है, वेटेज मिलता है. इसलिए हम कभी कभी पैसिव वॉइस में बात करते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना होता है. सो दैट्स व्हाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डेली लाइफ में काम आता है, और इसीलिए हमें वो ग्रामर में भी सीखना पड़ता है, इन पेपर 2 ऑल्सो एंड इन पेपर 1 ऑल्सो. Now we are coming to direct and indirect. No ma'am, that is very wrong thing कि basic हमें पेपर 1 में भी आता है, ऐसा नहीं है. पेपर 2 के में भी शायद वही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लेवल अप वाले आते हैं. उसमें क्लॉजेस ऐड होते हैं, उसमें फ्रेजेस ऐड होते हैं. पेपर 2 में 1-2 टर्म्स टॉपिक्स बढ़ जाते हैं. We are coming back here to direct and indirect speech. So direct speech is between two persons, that I am talking to you. So what I am talking to you is directly. So direct speech is there. But when a third person, like if यहाँ पे आपने सुना और कल किसी और को से बात करी है, तब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे कि शिल्पा सेज दिस थिंग टू दिस थिंग. तो मतलब आपने थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड प्रोनाउन यूज करके आपने जब सेंटेंस यूज किया, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो वहां पे प्रोनाउन पूरे चेंज हो जाते हैं. कैसे चेंज होते हैं हम अभी पीपीटी के द्वारा थोड़े से एग्जाम्पल्स करना सीखेंगे यहाँ पे. Hope you are seeing my PPT here. Yes. If the reporting verb in the direct speech statement is in present tense or future tense, then it remains same in indirect speech too. Means मैं अभी यहाँ पे हर चीज आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो वहाँ पे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि कंसेप्शंस के बारे में ही वो बात करेंगे. जो रेगुलर चीज है वो तो इजी वाला पूछे नहीं वाले हैं. यस, प्लीज टेल मी, आपको आवाज आ रहा है बाकी लोगों को? तो आई कैन मूव अहेड. एवरीवन इज हियरिंग इट? हेलो, ओके, थैंक यू. तो मैं जो जहाँ पे गलती हो सकती है उस बारे में बात करना चाहूंगी ज्यादा यहाँ पे. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट टेंस के या फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो उसकी बात जैसे की वैसे ही हमें बतानी होती है थर्ड पर्सन को. देन द थिंग रिमेन्स द सेम. लाइक माई फ्रेंड सेज ही इज वेरी हैंडसम. तो अब हम तीसरे को बताते टाइम हम उसका वाक्य नहीं चेंज करेंगे, हम इनडायरेक्ट में ऐसे बोलेंगे, माई फ्रेंड से दैट ही इज वेरी हैंडसम. If the reporting verb is in past tense in the direct statement, then the verbs within the inverted commas will undergo corresponding changes in the indirect speech. तो जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है, द गर्ल सेड फ्लावर इज प्रिटी. तो हमने क्या बोला? द गर्ल सेड दैट. हम दैट लगाते हैं. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो दैट यूज करते हैं, और सैड भी यूज कर सकते हैं, टोल्ड भी यूज कर सकते हैं.
द फ्लावर वॉज प्रिटी, हमें यहाँ पे उसको पास्ट टेंस करना है. नाउ द अगेन आई वुड गिव यू टेंस. इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें टेंस का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. तो कैसे वो चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हमें देखना है. प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है. द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास. इनडायरेक्ट स्पीच में होगा द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल स्टूडेंट्स हैड पास. सिंपल पास्ट में है रोहन सेड शीतल अराइव्ड यस्टरडे. पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है, तब हम बोलते हैं रोहन सेड दैट शीतल हैड अराइव्ड द प्रीवियस डे. ये हमें यस्टरडे का प्रीवियस डे को हमें चेंज करना है पैसिव वर्ब में. तो वहां पे जो कुछ वर्ड्स है जो चेंज हो जाते हैं, जैसे अभी हमने बोला टुडे, तो हम पैसिव वॉइस में करते टाइम दैट डे हमें यूज लिखना पड़ता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ देयर इज अ दिस इज द शॉर्ट फॉर्मूला फॉर प्रोनाउंस. तो मैं इतना अभी डिटेल नहीं बता सकती, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में हैं आई, तो वो पर्सन के ऊपर से इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच पे जाते टाइम उसको देखना पड़ेगा. राम हुआ तो हमें लिखना पड़ेगा आगे ही. अगर वहां पे सीता होगी तो हमें लिखना पड़ेगा शी. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अब जब ये हो गया तो सब्जेक्ट की चीज के लिए अगर मुझे ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो हिम या हर लिखना पड़ेगा. अगेन अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट कि वो लड़का है या लड़की है. नेक्स्ट इज आई होगा तो वो मी हो जाएगा. अगेन हियर फॉर फर्स्ट वर्ब इन प्लूरल सेक्शन, we becomes us, they becomes them, you becomes you only, you stays as you only, but he, she, they becomes in objective case it becomes him, her, they becomes them. Now here are personal pronouns. So my becomes mine, our becomes ours, your becomes yours stays yours only, his becomes his, हर बिकम हर्स. मतलब कि हिज पेंसिल, तो हिज पेंसिल ही आए ऑब्जेक्टिव में. लेकिन गर्ल के बारे में होगा तो हर पेंसिल बिकम्स हर्स पेंसिल, देयर पेंसिल बिकम देयर्स पेंसिल. मतलब ये सेकंड वाला टेबल है जो माय, आवर एंड योर इज अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है. आप इसको सीख लीजिए आराम से, तो पूरा बाद में आपको कभी फिर देखना नहीं पड़ेगा. एक बार ये टेबल आपको रिमाइंड हो जाए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. थैंक यू एवरीवन फॉर दिस टॉपिक. वी आर मूविंग अहेड. आज मैं क्वेश्चन आंसर्स, मल्टी क्वेश्चन आंसर्स या मल्टी चॉइसेस आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हमें टॉपिक्स कवर करने हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या हो सकता है. देन वी हैव सेम सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, मतलब अपोजिट वर्ड्स है, तो वो हमें वी हैव टू गो थ्रू सम वर्ड्स टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. होमोनिम्स आ सकते हैं, जैसे कि होमोनिम्स हमें बताना पड़ेगा कि सेम प्रोनाउंसिएशन है पर डिफरेंट मीनिंग होता है. जैसे कि SON इज सन, बट SUN इज, you know what is SUN is, the sun rises in the east. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे क्रीक, क्रीक है तो CREAK is creek, creek, but other creek means stream of water. So please understand here HAIR, here means we have a here, and HARE means rabbit like animal. So we have to go through these words. So shall we move now for the next topic, WH questions. Here it comes WH questions. हमें WH questions बहुत ही ज्यादा
अच्छे से तरीके से करना है, ताकि अगर हमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं, अगर हमें ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, तो हमें क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन से बिल्कुल भी मुश्किल होती नहीं है. आई विल शेयर यू दैट ओनली. जो हमने टेंसेस का जहाँ मैंने क्वेश्चंस खोल के रखा था, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको. हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ये नहीं हम बोल सकते कि यहाँ पे ही पढ़ लो और वहां पे पढ़ लो. एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है हर चीज. तो हियर कम व्हाट एंड व्हेन के आगे जब हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एडवर्ब एडजेक्टिव आ जाता है, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कोई सिंपल सेंटेंस दिया होगा या आंसर दिया होगा, उसका हमें क्वेश्चन बनाना है. तो हाउ विल वी डू दैट? वी हैव टू ऐड व्हाट डू यू डू ऑन सैटरडे मॉर्निंग. अगर हमने लिखा आई हैवंट ब्रेकफास्ट, आपको क्वेश्चन बनाने को बोला, तो ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टेंसेस का. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें करना है, अभी करेंगे हम इसके बाद में, क्वेश्चन आंसर के बाद में. Here are the 10 golden rules of subject verb agreement. ये हमें पढ़ना ही चाहिए टेंसेस के बाद में. ये पहली चीज होती है, अगर हम सब्जेक्ट की सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसे होगा, एंड वो एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट इन अ सेंस कि हम गलत सब्जेक्ट के साथ गलत वर्ब, मतलब सिंगुलर के साथ वर्ब का क्या रोल है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे. इट कैन चेंज द मीनिंग ऑल्सो. सो we have a 10 golden rules here to understand subject verb agreement. So we will go by one. Very important thing to understand here. First one, a plural subject takes a plural verb. अगर plural subject है तो plural verb होगा. जैसे boys है तो हमें is am are में से r लगाना पड़ेगा, was were में were लगाना पड़ेगा. So we have to understand this. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब हमारा, you know, I am not talking about the action word, I am talking about the auxiliary verb used in front of that. Before that हम जो लगाते हैं वो यहाँ पे सीखना है, अंडरस्टैंड करना है. नेक्स्ट वन इज I will okay, if you want to go through examples, we will cover that also. It will take 5 to 6 minutes only. Incorrect. The arrival of a new fall fashions have excited all the back to school shoppers. Correct one क्या है, आप ये देखिए. The arrival of new fall fashions, यहाँ पे देखिए ये रहा. I will just ये करते हैं. Has and have.
आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है. द अराइवल ऑफ न्यू फॉल फैशन, एंड हियर इज द अराइवल ऑफ न्यू फॉल फैशन. तो अभी वो फैशन लिखा है, इसलिए आपने यू हैव यूज्ड द प्लूरल वर्ब. तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी एक चीज के बारे में बात की है कि अराइवल ऑफ न्यू फॉल, तो वो एक सिंगुलर चीज है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज का यूज किया हुआ है. Next example, if you can see or read this, 25 rules is a lot to digest. 25 rules, ये देखिए, that I will do this. Color is सिंगल. यहाँ पे शायद आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं टीईटी में. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. नेक्स्ट, a subject made up of noun joined by and takes a plural subject unless the subject intended sense is singular. मतलब कि अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है. she and I run every day. तो she and I, तो दोनों मिलके तो वो प्लूरल हो गए ना, लेकिन यहाँ पे एंड जब यूज किया हुआ है इसके बीच में, तो इसका मतलब वो दोनों को अलग अलग एज ए सिंगुलर देख रहा है. तो अगर हम गलती करेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, रन्स लिखेंगे, लेकिन वहां पे क्या आना चाहिए, रन आना चाहिए. So that is the, it's single slight difference we have to understand this. Now next one is when a subject is made up of nouns joined by or the verb agrees with the last noun. और लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में यूज किया ना उसके साथ एग्री करेगा आपका वर्ब. देखिए यहाँ पे she और I, तो आई के साथ हमने पढ़ा था, वहां पे क्या यूज होता है, वो प्लूरल में घुस जाता है, तो रन आएगा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में. नाउ पोटैटोज, पास्ता और राइस यहाँ पे सिंगुलर है, तो वो गोज यहाँ पे मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके ठीक है. और राइस लास्ट वर्ड है, वो सिंगुलर है. मैं यहाँ पे ग्रीन करता हूँ. तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट. नाउ नेक्स्ट कम्स हियर कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन टेक अ सिंगुलर वर्ब. वो कलेक्टिव नाउन है प्लूरल की तरह, दे कम एज अ प्लूरल फॉर्म, बट वो उसको हम सिंगुलर करते हैं. जैसे द फुटबॉल टीम आर नहीं लिखेंगे, इज लिखेंगे यहाँ पे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिव phrases such as combined with, coupled with, accompanied by, added to, along with, together with, as well as, do not change the number of the subject. These phrases usually set off with commas. अभी कैसे किया है ये देखिए आप एग्जाम्पल में. Oil, comma, as well as gas, comma, is a popular heating choice. Peanut butter combined with bread and jelly is, यहाँ पे देखिए आपको is लिखा हुआ है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डायरेक्टली शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड आना ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन में टेंसेस के साथ में. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन फ्रेजेस के बारे में है. सेम थिंग, सिंगुलर वर्ब आता है कलेक्टिव नाउन फ्रेजेस के साथ भी, कलेक्टिव नाउन वर्ड के साथ भी और फ्रेजेस के साथ भी. नाउ ईच बॉय मतलब पूरे क्लास के बारे में बात हो रही है, लेकिन ईच बॉय बोला है तो मतलब सिंगुलर बोला है, इसलिए इज आया है वहां पे वर्ब के साथ. अभी नन ऑल्सो, नन मतलब फिर से एक बंदे के बारे में बात किया हुआ है, इसलिए वहां पे भी वो सिंगुलर वर्ब आता है. Now with fractions the verb agrees with the whole. जैसे the 1/4 of books are gone. Books is plural noun. 1/4 of sand is white. Sand is singular noun. You have to understand this. You have to practice this.
Now, with money, if amount is specific, the use of singular noun, singular verb. If the amount is vague, मतलब ऐसे sum या कुछ लिखा होगा तो plural verb आता है. Like within a year, $5 million was spent on building a new factory and millions more were spent. Millions more यहाँ पे ये देखिए more, मतलब कोई फिगर नहीं दिया हुआ है इसको, इसलिए वो क्या हो गया, प्लूरल में चला गया है. We will talk about the last subject for agreement golden rule. The phrase more than one takes a singular verb. How? More than one box is. More than one car, अगर past tense में है तो वो was आएगा, वहां पे were आता नहीं. So subject verb agreement is very very important to understand with the tenses. आप जो topics मैंने आज बोले हैं वो please go through, don't go through many questions. आप टॉपिक्स में घुसिए, तो आपका टीईटी का लैंग्वेज 1 का आप 30 आउट ऑफ 30 निकाल पाएंगे. तो आप ज्यादा, अगर मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी, ज्यादा 25 या आप सोचे मैं 50 हर टॉपिक का पढ़ लूंगी, तो डोंट डू इट. you have other subjects also to learn because they have a specific answer. But grammar rule आप अगर अप्लाई करेंगे हर टॉपिक के थ्रू, तो आपको 99.9 चांसेस है कि आपका आंसर करेक्ट निकलेगा. So give important when you are learning, when you are studying English subject language 1, please understand this, that you have to टॉपिक कवर कीजिए. 8 दिन के 8 टॉपिक लिख लीजिए, रोज आधा घंटा बैठिए, इंग्लिश आपका कंप्लीट हो जाएगा. So I will go for the next topic. स्पेलिंग एरर्स होते हैं, तो यू हैव टू प्रोनाउंस दैट. आप बोलिए, आपको स्पेलिंग चेक के लिए बोला है कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग आपका करेक्ट आने वाला है, तो आप उसको प्रोनाउंस कीजिए. आप खुद पे विश्वास रखिए और प्रोनाउंस करके एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, देन यू विल कम टू नो कि, क्योंकि अननोन वर्ड हो सकता है वो आपके लिए, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. आई एम सेइंग अगेन, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, तो डोंट गो फॉर द लास्ट ईयर पेपर्स वेरी बैडली कि देखते हैं पिछले साल के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे. तो आप अपने पे खुद पे विश्वास रखिए और आपका ये आसानी से हो जाएगा. मुझे आई हैव क्वेश्चन आंसर सेशन की बजाय मैं और 2-3 टॉपिक करना चाहूंगी. फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि वो पेपर 2 में भी आता है और पेपर 1 में भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाएगा इस साल, क्योंकि वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हमारे, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, तो उस हिसाब से हमारे करिकुलम चेंजेस होने वाले हैं. So I will go for figure of speech. Here is what is figure of speech. This is the poetic part. कि पोएम्स, आपको कोई भी पोएम आ सकती है, अननोन भी आ सकती है. अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है उस क्लास में तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दोनों तरफ से कोई भी पोएम आए तो आप यू अंडरस्टैंड द लाइंस, आप पढ़िए उस लाइंस को और समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होता है जैसे कि किसी भी सामान्य गुड़िया को सजाने के लिए हम अलंकार यूज करते हैं, उसको गहने पहनाते हैं, वैसे ही कोई भी सादे वाक्य को हम अगर अलंकार कृत, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर हम डालें तो वो और सुंदर होता है, सुनने में सुंदर लगता है, वही उसका फ्लेवर चेंज कर देता है, उसको बहुत अच्छा बना देता है. इसलिए हम पोएम से फिगर ऑफ स्पीच, लैंग्वेज हमारी एकदम अच्छी होने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं. सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच? हम शॉर्ट में
विद एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आप हर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में समझ पाए आज, ताकि आपको वो ऑप्शन दिखे तो आप समझ पाए कि ये हो सकता है या वो हो सकता है करके। तो कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी फिगर ऑफ स्पीच की? तो 4 तरीके हैं। पहले है कंस्ट्रक्शन की, कुछ बार राइम्स आ जाते हैं, लास्ट वर्ड वो एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। नेक्स्ट इज रिसेम्बलेंस। तो इसमें कौन कौन से आता है? सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी। ये हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एसोसिएट करते हैं, जैसे कि चांद को हमने मामा बोल दिया, मतलब वी मेक एसोसिएशन, कोई भी थिंग को हम उसको एसोसिएट कर लेते हैं, तो वो एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। एंड नेक्स्ट इज दोज हु आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्ट, कि एक सफेद है तो दूसरा काला, हम उससे कंपैरिजन करते हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग है या वो एक दूसरे के जैसे कैसे हैं, तो उसके बारे में जहां बात होती है वो भी अलंकार है, वो भी फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम एक एक करके अभी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो पहला है सिमिली। तो व्हाट इज सिमिली? वी विल जस्ट go through this. In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have however one point in common. तो डिफरेंट काइंड्स होते हैं लेकिन एक कॉमन पॉइंट दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एज द हार्ट पैनिस आफ्टर द वाटर ग्रुप, तो पैनिस माय सोनल आफ्टर दी ओ गॉड। तो आपको ये सेंटेंस अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हम ये इजी वाला देख लेते हैं। जैसे माई डॉग इज एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स, मतलब कि कैसा है मेरा डॉग। तो उसने सिमिली करके सिमिलर बताया कि जितना वो स्मेल, उसका डॉग का स्मेल कितना गंदा हो सकता है, तो डर्टी सॉक्स के जितना, मतलब वो दिखा रहा है एक को दूसरे के साथ, कंपैरिजन भी कर रहा है या उसको सिमिलरिटी दिखा रहा है। So that is called simile. Now we will come on metaphor. What is metaphor? A metaphor is an implied simile. It does not, like the simile, state that one thing is like another or act as another, but takes that for granted and proceed as if two things are one. तो वो सिर्फ ये बताता नहीं है कि वो इसके सिमिलर है, वो ये बोलता है कि वो वही है। तो कैसे है? द कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। तो कैमल क्या है यहाँ पे, कि जैसे शिप होती है समुद्र में, वैसे उन्होंने बोल दिया है कि कैमल है डेजर्ट में, कि वो एक दूसरे से रेगिस्तान में ट्रांसपोर्ट की जगह मदद करता है। तो वही चीज उसने सिमिलरिटी दिखाई है, लेकिन सिमिलरिटी दिखाने के टाइम उसने उसके जैसा यूज नहीं बोला है, उसने उसको वही चीज बोल दिया कि वो ट्रांसपोर्ट है, इस मीनिंग में उसने वो दिखाया है। Next, we are coming to every simile can be compressed into a metaphor, but every metaphor can expanded into a simile. तो ये हमें पोएम जब हम पढ़ेंगे वहां पे 2 लाइन्स पढ़ेंगे जो दिए गए होंगे टीईटी में, तब हमें ध्यान से पढ़ना है ये मेटाफर है कि जैसा बताया है या उसको वैसे ही एज अ सेम, दोनों एक ही है वो बताया है। तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए वो ज्यादातर देते हैं। और इसमें यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि एक को दूसरे के जैसे आकाश फॉट लाइक अ लॉयन, तो आकाश कैसे लड़ा? लॉयन की तरह लगा। नेक्स्ट उसने बोला आकाश वॉज लॉयन इन द फाइट, तो उसने ऐसे बोल दिया, मेटाफर में कैसे किया उसने, आकाश ही लॉयन है, मतलब लॉयन वो फाइटिंग में वो आकाश लॉयन की तरह ही लड़ रहा था, मतलब दोनों को एक कर दिया, सेम कर दिया, तो वो मेटाफर हो गया। और लॉयन की तरह लड़ा तो वो सिमिली हो गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। कोई भी चीज को हम इंसान बना देते हैं, कोई भी चीज को, जैसे अभी यहाँ पे हो गया लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, तो वो लाइटनिंग को हमने फीमेल का दे दिया रूप, और उसने बोला कि वो जैसे डांस करती है वैसे वो लाइट वहां पे डांस कर रही थी। लाइट इज अ ऑब्जेक्ट,
वो तो क्या डांस करेगी, लेकिन हमने पोयम में यू नो थिंक कि कलाकार है वो कुछ भी सोच सकता है, तो वो उसने उसको स्त्री का रूप देके उसको बोला कि वो डांसिंग कर रही है वहां पे। नाउ हियर द ट्री स्क्रीम इन अ रेजिंग विंड, तो कैसे वो साय साय की जैसे आवाज करते हैं। तो कैन ट्रीज एक्चुअली स्क्रीम? नो, एज अ ह्यूमन बीइंग दे कांट, बट हमें वो आवाज सुनाई देते तो हम बोलते हैं कि वो इंसानी है और इंसानों की तरह जोर जोर से इधर से उधर आवाज करते हुए बह रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज apostrophe. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to the personified object or an idea. This figure is a special form of personification. मतलब वो यू नो वहां पे वो नहीं है, या वो यू नो ही इज नो मोर देन वी उसकी याद में बोले तो हम उसको पर्सोनिफाई कर देते हैं। जैसे ओ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड विंड्स, ये आर ऑल अबाउट टू मॉक मी, इफ ये रियली पिटी मी, मतलब वो उसमें वो इतना दुखी है कि उसको लगता है कि ये तारे और क्लाउड्स भी मेरे लिए हैं और मेरे जैसे रो रहे हैं। यू नो दैट थिंग हैपेंस इन apostrophe. So next one is hyperbole. Hyperbole, what is an hyperbole? In hyperbole, a statement is made emphatic by a overstatement. कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के जब बात की जाती है तो वो स्टेटमेंट होता है hyperbole. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, I have told you million times. मतलब उसने 2-3 बार ही बोला होगा, कोई चीज रिपीट की होगी, लेकिन वो इतनी एग्जैगरेट हो गई है कि अब वो बोलते कि मैंने तेरे को 1000 बार बताया है ना, लाइक दैट। नाउ आई विल लिटरली डाई इफ यू डोंट स्टॉप यूजिंग हाइपरबोल्स करेक्टली, मतलब मैं मर जाऊंगी। तो ये भी वो बड़ा चढ़ा के एग्जाम्पल का जैसे है। नेक्स्ट इज एपिमिज्म. Euphemism consists in the description of a disagreeable thing by an agreeable name, like you are telling me a fairy tale. अभी यहाँ पे 2 कार्टून है, आप कार्टून देखिए तो आपको झट से समझ में आएगा। Good news dear, I am going to be spending more time with the family. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, एपिमिज्म definition, makes something bad sound good. The old man passed away. मतलब इसमें आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हमें कोई बुरी चीज पॉजिटिव वे में अगर हमें बतानी होगी तो हम ये वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड नो मेमोराइज द नेम कि कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच है जो इतना नेगेटिव बात भी वो पॉजिटिवली, अगर उसकी नौकरी चली गई है लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैं कल से तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, antithesis. And in antithesis, a striking opposition or contrast of words or sentiments is made in the same sentence. It is employed to secure escapism. मतलब कोई भी चीज में एक ही टाइम पे अपोजिट बातें आ रही है, जैसे लव एंड हेट, गुड एंड एविल, पीस एंड वॉर, so that is called this figure of speech. Next is oxymoron. Oxymoron is a special form of antithesis whereby two contradictory qualities are predicted at once of the same thing. Like I am busy doing nothing. मतलब एक वही चीज है कि एक ही सेंटेंस में हम अपोजिट बातें कर रहे हैं। Epigram. An epigram is a brief pointed saying frequently introducing antithetical ideas which excite surprise, arrest attention. For example, mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. Live simply so that others may live simply. तो इसका मतलब क्या हो कि कोई भी मतलब हम बोलते हैं ना कि चीज है, अट्रैक्शन हमें लाने के लिए हम ये वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। मतलब उसको इतना दोनों चीज मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही सेंटेंस में डाल के
हमारा मेन मोटो क्या है कि उसको हम जो बोल रहे हैं उसको अट्रैक्ट होना चाहिए उस बात करने के उस सेंटेंस के द्वारा. तो देन वी यूज दिस एपिग्राम. आयरनी है कि हम irony is mode of speech in which the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed. जैसे किसी को गुस्सा आया होता है तो आप पूछते हैं उसको, चलो जाते हैं बाजार, तो she said no, बट उसको जाना, उसका नो मतलब यस होता है. तो दैट इज कॉल्ड आयरनी. यहाँ पे फन इज अ वेरी मतलब फनी वे में हम कोई चीज अगर बात करते हैं तो उसको फन बोलते हैं. तो नेक्स्ट इज a pun is the use of word in which in such a way that it is capable of more than one application. तो पन हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे पंचे किसी को दूसरे नाम से बुला लिया या किया, तो ये इमिडिएटली ये वाला पहचान में आ जाता है, इतना हार्ड नहीं है. नेक्स्ट इज मेटोनिमी. इन मेटोनिमी an object is designated to be the name of something else which is generally associated with. कि हम ऑब्जेक्ट बताते हैं तो हमें उसका जैसे क्राउन बोल दिया तो किंग आ गया, बाटा बोल दिया तो हमें याद आता है शू आता है. तो इट कम्स विद दैट. इतना फेमस वो ऑब्जेक्ट होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट उसके साथ जुड़ी हुई ऑब्जेक्ट हमें या पर्सन हमें याद आ जाती है या वो आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं. नेक्स्ट इज सेनिक्डो. सेनिक्डो इज पार्ट इज यूज टू डेसिग्नेट द होल और द होल टू, मतलब छोटा पार्ट को हम बड़ी चीज दिखा सकते हैं या बड़ी चीज को हम छोटी चीज एज अ दिखा सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है, गिव अस द डे आवर डेली ब्रेड, मतलब कि एक दिन दे दो. जैसे वो डेली ब्रेड है ना, उसका एक दिन आई वांट टू से कि जैसे महीने का हर दिन मैं काम करूंगा तो मुझे डेली ब्रेड मिलेगा. इट्स लाइक दैट. तो मतलब वो सैलरी के बारे में बात कर रहा है, पूरे महीने की सैलरी में. यहाँ पे नेक्स्ट इज इंग्लैंड वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया. मतलब खेल रहे थे 12 लोग, एक टीम खेल रही थी, लेकिन हम बोलते हैं कि पूरा इंग्लैंड जीत. तो इट्स लाइक दैट figure of speech. Now is transferred epithet. What is this? This is very understanding और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला भी. In this figure, a word or phrase that describes a person or thing is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence. हम example देखते हैं. देखिए यहाँ पे I admit it was a fun day. मतलब कि हम पूरा दिन का एक सेंटेंस में जब हम मतलब कोई भी पूरा दिन कैसा गया, तो हम पूरा दिन हमें बहुत सारे फीलिंग्स आए, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वन, जैसे आज मैं डर गया था, तो मैं सच में दिन भर थोड़ी डरा हुआ था. तो उस टाइम पे डरा हुआ मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट था कि आज का दिन मैं डर गया था. तो लाइक दैट दिस इज द ट्रांसफर्ड एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज इंटरोगेशन. तो ये तो फटाक से पहचान में आ जाता है कि क्वेश्चन कविता में पूछा गया, लाइक आर यू क्रेजी, कैन यू इमेजिन दैट, और फिर वो पूरी पोएम होती है. इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, फिर वो पोएम होती है. तो ये वाला तो बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है. एंड दिस इज द एनास्ट्रोफी. मतलब कि सिंपल सेंटेंस आगे पीछे लिखा होता है. जैसे मैंने लिखा कि कल शाम को मैंने चाय पिया, तो ये सिंपल सेंटेंस है. लेकिन अगर कविता में मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगी चाय पी मैंने कल शाम को. तो आई जस्ट वर्ड्स इधर से उधर हिला देते हैं और वही सेंटेंस रहता है. तो दैट इज एनास्ट्रोफी. एंड दिस इज एक्सक्लेमेशन, मतलब कि वही ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना के हम अगर पोएम लिखते हैं तो ये भी पहचान में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. क्लाइमेक्स होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो जैसे पहले बर्थ बताया, फिर यूथ बताया, फिर वो ओल्ड एज बताया, फिर डेड हो गया. तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. एंटी क्लाइमेक्स होता है कि पहले हम एंड बताते थे और फिर
स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो जैसे वो स्टोरीज में भी होता है, मूवीज में भी होता है कि एक बंदा आके स्टेज पे बता रहा है कि 1987 में ये हुआ, और देन ही स्टार्ट कि मैंने ये साल में लिया, फिर मैं 9th क्लास में था, फिर ऐसे। इवन दैट टाइटेनिक मूवी आल्सो स्टार्टेड कि वो उसको एक हार मिला, दैट ओल्ड वुमेन, एंड देन शी इमीडिएटली वो मूवी में उस टाइम में घुस गई कि जब वो यंग थी और कैसे उसकी स्टोरी स्टार्ट हुई। तो एंडिंग हम पहले बताते हैं, एंडिंग क्लाइमेक्स है, और फिर स्टोरी एलेबोरेट करते। तो दैट इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। तो लगभग मैंने ज्यादा से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच आपको बताने की कोशिश की है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क है, लेकिन इम्पोर्टेंट वाला 1 मार्क अगर हमें समझ में आ गया तो मिल सकता है। Next is sentence structure. So I want you to write this sentence structure. आप लिख ले तो बहुत ही अच्छा होगा। So please, if you can write with me. Yes, there are the sentence structure. आप लिख सकते हैं पहले subject, क्योंकि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के अगर हमें समझ में आ गया, जैसे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, देन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, देन सब्जेक्ट वर्ब। आप लिखना शुरू कीजिए प्लीज। सब्जेक्ट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज ही बात करूंगी इस चीज के बारे में। प्लीज लिखिए सब्जेक्ट वर्ब। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कि सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। जैसे आई ईट, देन इट्स अ सेंटेंस पैटर्न। नेक्स्ट इज SVO ऑब्जेक्ट, आई ईट एन एप्पल। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न। नेक्स्ट इज यस, पन इज यूज। दैट्स व्हाई पन हम यूज करते हैं ना, हम बोलते कुछ है और उसका मजाक उड़ाना होता है हमें एक्चुअली में, तो इसलिए वो डबल मीनिंग वर्ड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड अगेन नाउन कम। ओके, तो मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ आपको। सब्जेक्ट वर्ब और नाउन को आप कैसे ढूंढेंगे, तो ये रहा, द मैन आर डॉक्टर्स। So you see, these are also a structure. So where did it come? तो हमें ये मदद करेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कंपाउंड सेंटेंस में होता है कि 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब आते हैं, लेकिन वो इक्वालिटी होती है। ओके, इक्वालिटी मतलब कि दिस एंड दिस। जैसे राम इट्स बनाना एंड संजय इट्स एप्पल। तो मतलब वो कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों इक्वली है। एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि जहां पे आपको सारे ग्रुप के बारे में बताया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर, गिव मी अ मिनट।
I'll Hi just stop Shilpa this and ma'am. I will give you exam. Hi Shilpa ma'am. We have another lecture at 7:15. So how much more time we will need? Hello ma'am. See, a complex sentence combines an independent clause with one or more dependent clauses. A complex sentence always has a subordinate condition. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा clauses and phrases, जो अभी मैं शेयर करूँ. 1 minute पहले हम वो understand कर Hello लें. Shilpa ma'am. Give me, teachers, please give me 10 to 15 more because I want to discuss this phrases Hello. and clauses also with you. Shilpa ma'am, hello. Hello. Yes, this is my last topic to make you understand. Then we will end this session. Give me just 5 to 10 minutes. I want to discuss with you because ये बहुत important है. Phrases and clauses. What is the difference between phrases and clauses? Phrases, not a full sentence, but clause is a full sentence. Okay. Now, can have subject, verb or neither. कुछ भी नहीं हो सकता. Subject भी नहीं हो सकता, verb भी नहीं हो सकता है. लेकिन एक सब्जेक्ट हो और ऑक्सिलरी वर्ब हो तब भी वो फ्रेज बन जाता है. एक कंप्लीट थॉट नहीं होता है फ्रेज, लेकिन क्लॉज एक कंप्लीट थॉट होता है. उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब खुद का होता है. फ्रेजेस एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब फ्रेजेस होते हैं क्योंकि वो उसमें कौन सा वाला वर्ड आया वो डिपेंडेंट होता है किसके साथ वो फ्रेज शुरू होता है. एडजेक्टिव के साथ शुरू होता है, एडवर्ब के साथ, या वो फ्रेज कैसे काम कर रहा है उस सेंटेंस में. एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, किसी मतलब नाउन के बारे में ज्यादा बता रहा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है. वर्ब के बारे में ज्यादा बता रहा है वो फ्रेज तो वो एडवर्ब फ्रेज होता है. नाउ कमिंग टू क्लॉज. क्लॉज के बारे में मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि क्लॉज एक सेंटेंस में दो होते हैं. एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो मेन क्लॉज क्या होता है कि अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज हटा ही देते हैं तभी उसका अपना एक मीनिंगफुल मतलब वर्क होता है, समझ में आता है. लेकिन अगर हम मेन क्लॉज हटा देंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज रखेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाता है. लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज में क्या सिमिलरिटी है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है एंड मेन क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है. So I will just give me 2 more minutes, everyone.
हाँ, हम डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे आए हैं कि नहीं? ये देखिए, वो एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस शुरू हो जाते हैं, एज अ कंजक्शन वो यूज होते हैं उस इसमें। नेक्स्ट इज ओके, डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हम अभी बात करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब but does not express a complete thought cannot stand alone as a sentence and start with subordinate conjunction. तो मुझे क्लॉज के बारे में ये बात करना है, जैसे when के साथ शुरू हो गया, what के साथ शुरू हो गया, how के साथ शुरू हो गया, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वो क्लॉज नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। लास्ट डे, इन द लास्ट डे, हम सैटरडे को जब मिलेंगे तब मैं क्लॉजेस के बारे में आपको और अच्छे से उस दिन 10 मिनट निकाल के हम क्लॉजेस के बारे में और ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो टॉपिक के बारे में डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभिषेक सर, आई एंड माय सेशन टुडे। Yes, बहुत कुछ करना था, लेकिन समय की मजबूरी के कारण हमें ये सेशन अभी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें मराठी सब्जेक्ट के बारे में भी करना है, जानना है और समझना है। Yes, ma'am. And teachers, we have the अभिषेक same. सर, Yeah, ma'am. We have the same link अभिषेक for सर, कैन यू tomorrow as हेयर well. मी? Yes, ma'am. You are audible. Am I audible? Am I audible? ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आपको फीडबैक लिंक अभिषेक सर ने डाल दी है, प्लीज गो थ्रू दिस फीडबैक लिंक। सैटरडे को हम कल से हम रोज मिलने ही वाले हैं, लेकिन ये जो दो टॉपिक जो मेन रह गए हैं, हम सैटरडे को उसके बारे में थोड़ा 10-10 मिनट दे के हम अच्छे से क्लॉजेस फिर से एक बार करेंगे, क्योंकि वो पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं उस दिन पहले क्लॉज डिस्कस करूंगी, then I will come to the discussion of multi choice questions. वहाँ पे मैं उस दिन आपको questions भी दे दूंगी। So really I don't want to get into the questions today itself. आपने देखा, मैंने topic भी cover करते time I was just moving on because there are lots of topics to cover in English, first language or second language as the English. So please go through, learn। तो आप पढ़ाई जब भी करें टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करें। डोंट गो फॉर ये क्वेश्चन कर लिया, वो क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर गया, नहीं। गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक। आपका लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जो भी है इंग्लिश के लिए, आपको अच्छे से 30 आउट ऑफ 26 28 आज अगर आपने सुना है, और सैटरडे को हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। जो अगर मेरा कुछ टॉपिक आप पंक्चुएशन रह गया, जैसे 2-3 टॉपिक है जो रह गए, वो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे और अच्छे से होंगे। तो थैंक यू एवरीवन। Abhishek sir, if you want to continue something or say, we can close this session now. Yes, ma'am. All the teachers, thank you so much for attending this lecture. And we will be using the same link for coming days also. So you can join on the same time for English and for same time for Marathi as well. So both the link have been shared. Okay, ma'am. Okay, thank you Abhishek sir, and I have to give 15 minutes to change up। आपको कुछ काम करना है, तो ताकि मराठी सेशन आज सबके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 होगा या लैंग्वेज 2 होगा, तो जैसे इंग्लिश है वैसे ही मराठी है, आपको हर एक को अटेंड करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। Meeting. प्लीज फीडबैक लिंक भरिए, ताकि हमें आगे आने वाले सब्जेक्ट में हम अच्छे से कवर कर पाए। अगर मैं पीपीटी थ्रू इतना सब नहीं होता आज, अगर मैं रेगुलर पीपीटी करती, इससे मैंने आई वांट यू टू गिव यू, इससे मैंने ज्यादा स्पीच रखा और पीपीटी कम रखा आज के सेशन में, लेकिन कल से हम पीपीटी भी रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, वी कैन क्लोज इट नाउ। Thank you, ma'am.